ہمارے آباء و اجداد نے بہت بڑی قربانی دی ہے اس دن کے لیے، اور اس دن جو پاکستان اللہ رب العزت نے ہمیں تحفے میں دیا، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے محنت کر کے اپنی زندگی کا اہم حصہ قربان کر کے ہمیں ایک آزاد ملک دیا، تو 14 اگست ہمیں منانا چاہیے۔ اور میرا میسیج ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ 14 اگست اسی طریقے سے منائے جب ہم اسلامی تہوار مناتے ہیں، اور اس دن پہ ہمیں پوری دنیا کو میسیج دیتے ہیں کہ ہم آزاد ملک ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، اور اپنے ملک کے لیے ہم ہر قسم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ملک بننے کے جو ثمرات سب کو حاصل ہونے چاہیے تھے وہ شاید عام عوام تک نہیں پہنچ پائے، اور وہ عام عوام تک پہنچیں گے تو پاکستان بننے کا مقصد حاصل ہوگا، اور اسی کو ہم کو سامنے لے کے اب چلنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کے 76ویں جو ہے یوم آزادی پر ہم ایک مشکل وقت سے گزرے ہیں، اور اس کا اندازہ عوام کو بخوبی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس موقع پہ دعا کی جا سکتی ہے اور اس عزم کو اعادہ کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ آخری سال ہو جب ہمیں اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو، اور اگلا سال جب شروع ہو تو پاکستان اس سے ایک بہت طاقتور، خوشحال اور پراسپرس ملک پر کے ابھرے۔ 14 اگست ہمیں محبت کے ساتھ منانی چاہیے، شو بازی میں نہیں۔ پاکستان کی سرزمین سے اسے پیار کے انداز میں ہمیں منانا چاہیے، اور یہ جو توتاڑیاں اور یہ بجاتے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، اس سے ہم مجمع تو ہو سکتا ہے، قوم نظر نہیں آتی۔ تو میں پاکستانی جو ہے ان سے کہ پہلے 14 اگست ہوتی تھی تو ہم اسکولوں میں، کالج میں ڈبیٹس ہوتی تھی، اس پر فوکس کرنا چاہیے، اور یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔ ساری قوم کو مبارک ہو 14 اگست، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہوں گا کہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک پاکستان کو اس مشکلات سے نکالے، اور سیاست میں مستحکم حکومت آئے جو کہ عوام کی سوچ رکھتی ہو، اور اکنامک کرائسس سے پاکستان کو نکالے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کو نکالے۔ تو یہی میری دعا ہے، اور نوجوانوں کے لیے دعا ہے اور پیغام ہے کہ پڑھائی کی طرف توجہ دیں، مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے یہ، اور انشاءاللہ پاکستان کے نوجوان اس ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے اور ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں گے۔ 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اور یہ آزادی ہم نے بڑی مشکلوں سے حاصل کی تھی، بڑی قربانیاں دی تھیں، لیکن جس مقصد کی آزادی ہم نے حاصل کی تھی، آج وہ مقصد ہمارا کافی حد تک اسپائل کوشش کرنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان کو ایک امیج کے ساتھ ایک ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگرچہ بہت ساری سازشیں ہوئی ہیں، لیکن سب سازشوں کا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے مسلم لیگ نون کی حکومت نے مقابلہ کیا۔ آج ملک میں ہر جگہ موٹر ویز، سی پیکس، بارڈر پورٹ، اور بالخصوص عوام کے لیے میٹرو بس جیسی سہولتیں ایک جو کوئی ترقی یافتہ ممالک میں ہوتی ہیں، آج پاکستان میں بھی انشاءاللہ وہ چل رہی ہیں۔ لیکن میری دعا ہے کہ 14 اگست، اگلا جو 14 اگست ہے، پاکستان کی IMF سے نجات حاصل ہو، اور پاکستان میں دنیا میں اچھا نام پیدا کر۔ پاکستان 14 اگست کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو جو 1947 میں جن لوگوں نے قربانیاں دیں اپنی مال، جان، عزت و آبرو کی، ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے اور قائد اعظم کے تمام تر فرمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک کی بقا اور اس ملک کی آئین اور اس ملک کی حفاظت کے لیے جب جا کے بات بنے گی، جب ہم اس چیز پر عمل پیرا ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ریتی دنیا تک پاکستان اسی طرح پلتا اور بڑھتا رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ 14 اگست سن 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، اور یہ پاکستان علامہ مشرق محمد اقبال صاحب کا خواب تھا، جسے عمالی جامہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہنایا، اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، جس میں ہمارے مائیں، بہنیں اور ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ قربانی دینے کے بعد یہ مرض وجود میں آیا، اور یہ دو قومی نظریے پر وجود آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
तो इस अजीम कलिमे के बलबोते पे ये मुल्क दुनिया की नक्शे में आया है, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस पर 14 अगस्त को खुशी मनानी चाहिए। लेकिन इफ़ाए आहद, जो आहद हम अल्लाह से कर चुके हैं कि इस मुल्क को हम एक इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे, उस आहद को दोबारा ताज़ा करने की ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क में अनारगी है और सियासी इख्तिलाफात को ज़ाती इख्तिलाफात तक लोग लेके गए हैं, तो इसको ख़त्म करके पूरे पाकिस्तान के लोग सियासी इख्तिलाफात को अपनी जगह रख के पाकिस्तानी होने की हैसियत से इस मुल्क को हमें आगे लेके जाना है। उम्मीद तो रखनी चाहिए और उम्मीद है भी सबको, अब यकीन आने का वक्त है। पाकिस्तान बनाना मकसद नहीं था, पाकिस्तान बनाने का भी कोई मकसद था। तो हमें कौम की हैसियत से देखना चाहिए कि हम उन मकासद तक पूरा उतर चुके हैं। मेरा ख्याल नहीं है। आज़ादी वही है और आज़ादी का वसी तर मफ़हूम भी है कि वो आज़ादी सिर्फ नारे की हद तक ना हो, बल्कि हर पाकिस्तानी उसको महसूस भी कर सकता हो। तो हमें देखना हमने कितने पाकिस्तानियों तक ये आज़ादी पहुँचाई है। नहीं पहुँचाई है तो पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान से दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो, नौजवान नस्ल जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिले, मुल्क माशी लिहाज से तरक्की करे, पाकिस्तान में लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो, खा वो गैस की है खा वो बिजली की है, और वो 2013 का दौर वापस आए जब ज़ीरो लोड शेडिंग थी, ज़ीरो दहशत गर्दी थी। मियाँ साहब ने जो बनाई थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वो जो एंटी टेररिस्ट के लिए बनाई थी, वो रेंजर्स थे, पुलिस थी, फ़ौज थी, और नेशनल एक्शन प्लान के तहत जहाँ जहाँ हमने एक्शन किया उसके बाद दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया। खुदा करे फिर से वो पुरअमन दौर लौट आए। आज़ादी से बड़ी नेमत कोई नहीं है, ये हम अपने कश्मीरी भाइयों से सीखें जो आज़ादी की जंग इतने सालों से लड़ रहे हैं। तो आई थिंक इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। और अब आई थिंक इस अक्रॉस बोर्ड आई फील कि जो हमारी यंगर जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बुज़ुर्गों को चाहिए कि उनके अंदर अपने मुल्क की मोहब्बत, अपने मुल्क के लिए जो है रिस्पेक्ट वो इनकलकेट करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान है, हम हैं, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हमारी शनाख्त हमारे अपना झंडे से, हमारे अपने पासपोर्ट से। तो उसके ऊपर काम करें। हर कोई अपनी ज़ात का सोचता है, अपने वतन का सोचे, क्योंकि वतन ही हमारी शनाख्त है। पाकिस्तान बहुत सारी कुर्बानियों से मादे वजूद में आया था और हमें उन कुर्बानियों को याद रखना है, उस वजह को याद रखना है कि पाकिस्तान किस लिए बनाया गया था। पाकिस्तान इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर जब बनाया गया तो उसकी बेसिक बुनियाद ये थी कि जो उस वक्त हमारे साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा था, आज हम मुसलमान के साथ वही काम कर रहे हैं। तो हमें बर्दाश्त, मोहब्बत, इखलाक, प्यार का दर्स देना है। हम ये जो अंग्रेज़ों ने या हिंदुओं ने पाकिस्तान मुसलमानों के साथ, मुसलमानाने हिंद के साथ किया था, आज हम वही मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के साथ कर रहे हैं। चाहे उसको फ़िक़े की बुनियाद पर, उसको उसके लिबास की बुनियाद पर, उसको उसकी ज़बान की बुनियाद पर हम जज करते हैं, हम तनकीद का निशाना बनाते हैं। उसकी राय की बुनियाद के ऊपर, उसकी सोच की बुनियाद के ऊपर हमें इन नफ़रतों से आज़ाद होना है। हमें पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम ममालिक के अंदर खुलफा राशिदीन के दौर के अंदर भी यहूदी भी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे, उस वक्त भी इस्लाम उनको प्रोटेक्ट करता था। आज हमने उनको भी प्रोटेक्ट करना है, हमने माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है, हमने अपने मुसलमान भाइयों को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो सुन्नी है, वो शिया है, वो अहले हदीस है, वो बरेलवी है, वो देवबंदी है। हम सब एक खुदा और उसके एक नबी के मानने वाले हैं। हम सबको पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाने के लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमें एक दूसरे की सियासी नफ़रतों को भी भुलाना पड़ेगा अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो पाकिस्तान इस वक्त मसाइल से दो चार है। आम आदमी बेरोज़गारी से तंग है, उसे रोज़गार चाहिए, महंगाई से भी तंग है, और जो कुछ हमारी लेगेसी थी मुस्लिम लीग नून की, और जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद किया और IMF के साथ बिहेव किया और पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान का वक़ार जो है उसको ख़त्म किया, उसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान जो है उसका
नाम जो है मईशत के लिहाज से दुनिया में कैटेगराइज अगर किया जाए तो सबसे नीचे आ रहा है। बदकिस्मती ये है कि हमारे अदारे जो हैं, बाकी अगर अदलिया भी है तो वो उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया, उन्होंने पहले से भी उनका ग्रेडिंग जो है वो कम है। और अगर ट्रांसपेरेंसी देखी जाए रिश्वत के लिहाज से तो पहले पिछले 5 साल से रिश्वत का जो लिहाज से वो भी ज़्यादा है। तो इन हालात में पाकिस्तान मुल्क उस वक्त तरक्की करता है जब उसके अदारे मजबूत हों, जब उसके अदारों की ये हालत हो तो आम आदमी को बिल्कुल इसके फ़वाइद जो हैं या वो आम आदमी इससे मुस्तफ़ीद होता है और आम आदमी की हालत जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अदारे जब तक मजबूत नहीं होंगे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है उसकी पर कैपिटा इनकम और उसका म्यार ज़िंदगी दिन ब दिन कम होता जाए। पहले तो पूरे अहले वतन को 76वां योम आज़ादी मुबारक हो। और ज़ाहिर 14 अगस्त जब भी आती है तो हम उन शहीदों को और हिजरत को नहीं भूलते कि जिसकी बुनियाद पे इस मुल्क की बुनियाद खड़ी हुई। और हमारे मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। जब इस मुल्क में हम हिजरत करके हमारे बड़े आए तो यकीन जानिए ऐसा नहीं लगता था कि ये वतन हमारा जैसे है, लेकिन जो इसकी मोहब्बत थी, यहाँ की ज़मीन की मोहब्बत, यहाँ के लोगों की मोहब्बत, तो हम सब जब पाकिस्तान में मिल के सोचते हैं तो बड़े कारनामे अंजाम दिए, मुश्किलात भी आई, जंगें भी हुई, बहुत सारा हुआ है कि हमारा बाजू अलग हो गया मशरक़ी पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों का जज्बा और यहाँ के पाकिस्तानियों में एक जो ख़ास बात है वो किसी और दुनिया में नहीं, वो ये है कि अपने मुल्क के लिए हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। ख़ास तौर पे सबको याद होगा कि जब दुश्मन ने हमला किया तो यही आवाम थे कि जो 14 जो मुल्क बचाने के लिए बम बांध के टैंकों के आगे लेटे थे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि कोई अच्छी लीडरशिप हो, इस मुल्क के लोगों को सही सिमत में डालें तो ये हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। हर आने वाला 14 अगस्त हमें ये पैगाम देता है कि लाखों दीप बुझे थे तो ये दिया जला था, इसकी हिफाजत करनी है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। 14 अगस्त हम हर साल रवायती अंदाज से तो मनाते हैं, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात जा रहे हैं हमें इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, लॉयल्टी और पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की तरफ सोचना चाहिए। हमें इसको सिर्फ एज ए ट्रेडिशन इसको नहीं मनाना चाहिए, हमें इस पे अपने पाकिस्तान के साथ जो हमारे एक अज़म है, पाकिस्तान के साथ हमारी जो वफ़ादारी है और पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ हमें सेमिनार करने चाहिए।